नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। ऐतिहासिक राजवाड़ी में भी दुर्गा पूजा की धूम महासप्तमी को राज परिवार के सदस्यों ने दी अंजलि। जलपाईगुड़ी के ऐतिहासिक राजवाड़ी दुर्गा पूजा इस वर्ष 511 वर्ष में कदम रख रही है। शुक्रवार को मां अंजलि महासप्तमी के पावन अवसर पर राज पुरोहित व राज परिवार के सदस्य प्रणत कुमार बासु की मौजूदगी में मां दुर्गा की पूजा अर्चना संपन्न की गई। इस अवसर पर राज परिवार के सदस्यों ने मां दुर्गा को अंजलि दी। बता दें कि केवल इसी पूजा में अर्धरात्रि को मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। प्राचीन राजवाड़ी दुर्गा पूजा के आयोजन में विभिन्न प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी काल में पूजा के अवसर पर भक्तों की भीड़ नहीं देखी गई। राज पुरोहित शिबू घोषाल ने बताया कि सरकारी निर्देश व स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूजा का आयोजन किया जा रहा है। সকালে সূর্য ওঠার পরেই রাজবাড়ির প্রতিনিধি যে আছেন পুনত বসু তিনি প্রথমে বরণ করলেন। তারপরে আমরা বেল বৃক্ষের থেকে বেলের ডাল সমেত নবপত্রিকা নিয়ে এসে স্নান করিয়ে পুজো আরম্ভ করলাম। আজকে সকাল থেকে সূর্য ওঠার পর থেকে পুজো শুরু হয়েছে। এখন সারাদিন পুজো চলবে, ভোগ ঠোক আছে। তারপরে আজকে আমাদের সন্ধ্যাবাতি পরে আবার আজকে রাত্রে আমাদের অর্ধরাত্রি বিহিত পুজো আছে, যেটা কোনোখানে হয় না। এখানে সেই রাত্রে অর্ধরাত্রি পুজো আজকেই করেছে। হ্যাঁ, মানে করোনার ইয়েতে আমরাই এমনি নানা রকম ইয়েতে বলে দিয়েছি, লোক খুব কম আসছে। যারা আসতেছে না মন্দির বাড়ির থেকে প্রণাম এবং পুজো দিয়ে চলে যাচ্ছেন। অন্যবারের তুলনায় লোক খুব কম আসছে। सिलीगुड़ी में 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 7 गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों के आधार पर फांसीदेवा मोड़ पर अभियान चलाकर माटीगढ़ा पुलिस ने 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में पुलिस ने 2 वाहन, नगद 52,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन भी बरामद की है। आरोपियों के नाम अहिदुर शेख, रकुल शेख, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद अख्तरुल मोमिन व मशीदुर मोमिन है। ये पांचों मालदा के कालियाचक निवासी है। वहीं सुबोध रॉय और प्रीतम रॉय प्रधान नगर थाने के बागाजतीन कॉलोनी के निवासी बताए गए हैं। इन सभी आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। डीसीपी कुंवर भूषण सिंह ने पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। First of all, I welcome you all on the behalf of Siliguri Police Commissariat. আজকে এটা যে প্রেস ব্রিফিং হচ্ছে, ওনার মেন উদ্দেশ্যে আছে আপনাকে একটু ডিটেলস দেওয়ার জন্য, যেটা একটু হিউজ কনসাইনমেন্ট অফ ব্রাউন সুগার সিজ হয়েছে। So before starting, I want to narrate that in last 3 months, a number of success has been done on the behalf of Siliguri Commissariat, where we have seized huge amount of brown sugar, fentanyl and ganja. So in the last 3 months, we have seized more than 7.5 kg of brown sugar, which has a value around 7 crore rupees, approximately as per international market. And we have seized more than 1,500 kg of ganja in last 3 months throughout the Siliguri Police Commissariat, and also we have seized more than 20,000 of fentanyl drugs, fentanyl bottles. So it is a massive drive started on the behalf of Siliguri Commissariat. We have started to contain this drug abuse. So it is a huge success, and I wish everyone, I wish to congratulate all the police personnel of the Siliguri Commissariat that we have achieved such a huge success today also. স্যার কোথায় এবং ঠিক আছে, আমি যেটা কেস আছে ওনার ডিটেল আপনাকে তারপরেই দেব। তো এটা যেটা লেটেস্ট এটা সিজার হয়েছে, ওখানে ওটার ডিটেলস আমি আপনাকে দিচ্ছি। গতকাল একটা ইনফরমেশন ছিল কি হিউজ কনসাইনমেন্ট অফ ব্রাউন সুগার যেটা আছে মালদা থেকে এখানে আসছে। তারপরে আমি মাটিগাড়া ওসি মাটিগাড়া যেটা আছেন সুবল এবং আমার এসিপি চিন্ময় মিত্তল, ওনাকে বললাম কি ভালোভাবে আপনি 2টা 3টা টিম তৈরি করে দাও, অ্যান্ড যখনই এখানে আসবে ওনাকে ইন্টারসেপ্ট করতে হবে এবং যেটা ব্রাউন সুগার আছে ওনাকে सीज करते হবে। सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड आज को 2 बजे के आसपास फांसीदेवा मोड़ जो है वहाँ पे हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। 5 लोग जो थे
वो मालदा से वो लोग आ रहे थे और 2 लोग डिलीवरी लेने वाले थे। तो जब ये ह्यूज कंसाइनमेंट जब डिलीवर होने वाला था उसी समय पे हमारा जो माटीगाड़ा का जो टीम था उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया। जखने एटा सर्च होलो तारपरे अप्रॉक्सिमेटली 2 kg ऑफ ब्राउन शुगर पावा गई। पश्चिम बंगाल में महासप्तमी पर नव प्रतिका की पूजा के लिए इकट्ठा हुए भक्त। देश में आज नवरात्रि का 7वां दिन है। मां शक्ति, मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिग्गजों ने इस पावन अवसर पर बधाई दी है। बंगाल, बिहार समेत देश के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शरदीय नवरात्रि के समय में ही दुर्गा पूजा का उत्सव भी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के सदस्यों ने महासप्तमी के अवसर पर नव प्रतिका की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 4157 नए मामले सामने, 64 और मरीजों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के रिकॉर्ड 24 घंटे में 4157 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,37,283 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में जानकारी दी। संक्रमण से 24 घंटे में 64 और लोगों की मौतें हो जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,308 पहुंच चुकी है। बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,608 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 36,064 उपचाराधीन मामले हैं। वहीं 2,94,911 लोग अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। देश में 7 लाख से कम सक्रिय मामले बचे, 69 लाख से अधिक लोग हुए ठीक। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 7 लाख से कम बचे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भारत में 69 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही देश में रिकवरी दर करीब 90% के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में जहां देश में नए मामले कम आए हैं, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 54,366 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना के कारण 24 घंटे में 690 लोगों की मौतें भी हुई। इसको मिलाकर देश में कोरोना का आंकड़ा 77.5 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के 77,61,312 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 69,48,497 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 6,95,509 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,17,306 लोगों की मौतें हो चुकी है। 350 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत 4 गिरफ्तार। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित जयगांव में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक महिला समेत अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जयगांव थाने की पुलिस ने बताया कि जयगांव के त्रिवेणी टोल इलाके में अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास से 350 ग्राम ब्राउन शुगर एवं एक एसयूवी गाड़ी बरामद की गई है। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंतल बैनर्जी ने बताया कि तस्करों के नाम कर्मा शेरपा, महिला सोनाम शेरपा, रमेश लामा व शिबू कुमार दर्जी है। ये सभी जयगांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि रमेश लामा मादक पदार्थ के तस्कर गिरोह का मुख्य सरगना है। उसकी गाड़ी से ही मादक पदार्थों की तस्करी की जाती थी। वहीं रमेश लामा ने बताया कि वह इन मादक पदार्थों को भूटान में तस्करी करने के लिए सिलीगुड़ी व मालदा से खरीदता था। बुधवार रात गिरफ्तार महिला कर्मा शेरपा त्रिवेणी टोल इलाके में ब्राउन शुगर बेचने के लिए पहुंची थी। तभी खुफिया जानकारी के आधार के बाद पुलिस ने इलाके में अभियान चलाकर महिला समेत 4 तस्करों को धर दबोच लिया। एएसपी ने बताया कि जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। रिगार्डिंग सीजर ऑफ ब्राउन शुगर, इसमें कल हम लोग 4 पर्सन जो है उसको अरेस्ट किए हैं। उसमें एक लेडीज़ है, नाम है कर्मा शेरपा, सोनाम शेरपा, रमेश लामा और शिव कुमार दर्जी। चारों जयगांव रहने वाले हैं और
उनके पास से हम 350 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए हैं। जो ये बाकी जो 3 हैं मेनली यहाँ पे जो कर्मा शेरपा हैं लेडीज़, उनको सेल करने आए थे, तब रेड हैंडेड जायगा पीएस इन लोगों को एक साथ में पकड़े। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ के पार, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3.11 करोड़ से ज्यादा हुई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.19 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 3 करोड़ 11,83,219 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11.42 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस में संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। इस छोटे से देश में गुरुवार को 43,000 से नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। फ्रांस में कोरोना की वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। गुरुवार को यहां करीब 43,000 से नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। सरकार ने माना कि यहां दूसरी लहर शुरू होने के बाद अब तक संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार ने इस बात को भी माना कि 9 शहरों में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की असर ज्यादा नहीं हुआ। अब खबर है कि फ्रांस सरकार शनिवार को होने वाले बैठक में लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922320502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिले सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं,
स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। आग लगने से 5 घर जलकर राख। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के खूंटी अंचल के गोचीगंज गांव में देर रात आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। आग लगने में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही घर में रखे मवेशी, कपड़े, अनाज समेत काफी संख्या में अन्य सामान जलकर राख हो गए। घटना की खबर मिलते ही इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी द्वारा पीड़ित परिवारों की मदद का काम शुरू कर दिया गया। विधायक के निर्देश पर तृणमूल नेता कमलुद्दीन एवं जिला परिषद के उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि जावेद अख्तर BDO कार्यालय के सहयोग से पीड़ित परिवार के लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने का आश्वासन भी दिया। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। গতকাল রাত্রি 12টার সময় যে ঘটনা আগুনটা লেগেছিল সেই খবর পেয়েছিলাম আমরা, জাবেদদা, আমরা তখনই আকবর এই খবরটা দিয়েছিলেন, এখানকার নেতৃত্ব আকবর আলী, এবং এখান থেকে আরও ফোন যাই। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীকে রাত্রের মধ্যে জানানোর মধ্যেই উনি সকালে নিজে আমাদের ফোন করে দুজনকে যে তোমরা তাড়াতাড়ি যতই পারো মানুষের পাশে দাঁড়াও, যে গ্রামটা জ্বলে গেছে ওদের পাশে দাঁড়াও, কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই কথা আমরা আকবরের মাধ্যমে তদারকি করে খোঁজ খবর নিয়ে এখানে 5টা গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার হয়ে গেছে। 5টা পরিবার আর কি। এই পরিবারগুলো আমাদের বিধায়কের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্য করার জন্য আমরা এসেছি, তাদের পাশে আমরা দাঁড়ার জন্য এসেছি। সামনে একটা দুর্গাপুজো উৎসব, আবার 29 তারিখে আমরা 12 রব্বিল, এই দুটো মৌসুমি, একদিকে দুর্গাপুজো, একদিকে 12 রব্বিল, সে সময় এই ঘটনাকে আমরা খুব দুঃখজনক, এবং আমাদের বিধায়ক আশ্বাস দিয়েছেন, পলিথিন দিয়েছেন, কাপড় দিয়েছেন, কিছু চাউল টাউল ওনার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা BDO সাহেবকে জানিয়েছি। আগামী দিনে এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পিছনে আমাদের সরকার সদা সর্বদা আছে, আগামী দিনও থাকবে। আমরা এনাদের বলেছি আপনারা BDOর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আগামী দিনে সরকারের পক্ষ যা যা সুযোগ সুবিধা আমাদের मुख्यमंत्री एवं विधायक अवश्य अपनाদের पास থাকবে। आज इस्लामपुर ब्लॉक में डिमटी अंचल गोचीगंज एक जगह है, एक गांव है, जहां पे रात के 12 बजे अचानक आग लगी। अब वो आग नेचुरल था, हादसा होना था। आग लगी, पूरे घर, 5 फैमिली का हर सामान, खाने पीने से लेकर के कपड़े लत्ते तक, वो सब जल कर राख हो गए। 6-7 जानवर थे, बकरियां थीं, आपको गाय जो दूध देती थी, कुछ एक फैमिली हमने देखा जो विडो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वही उस गाय के दूध से ही उसका पूरा फैमिली मेंटेन होता था। आज उसके जल जाने की वजह से वो गाय भी ख़त्म हो गई। आज उसका फैमिली का चलाने का सब रास्ता बंद हो गया। ये बहुत ही दुख का विषय है। इसी दुख का खबर सुनकर हमारा यहाँ का प्रतिनिधि अकबर बाबू और उनके साथ हमारे और भी राजा इन लोग थे, उन लोगों ने खबर दिया। इसी बीच में हमारे जो विधायक जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब, उन्होंने भी फ़ोन से सबको कांटेक्ट किया। फिर हम और कमालुद्दीन दोनों मिलकर फिर BDO से हम लोग कांटेक्ट किए। जहाँ तक जो कुछ भी हुआ, इस फैमिली को कुछ दिन चलाने के लिए पॉलीथीन से लेके कपड़े से लेके चावल वगैरह तक देने की एक कोशिश की गई। PM मोदी ने बिहार में शुरू किया चुनाव प्रचार। पहले पासवान रघुवंश को दी श्रद्धांजलि, कहा हमने बिहार का किया विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनावी रैली करने बिहार पहुंचे हुए हैं। उनकी पहली रैली रोहतास में हुई। इसके बाद वे गया और भागलपुर में भी जनता से रूबरू होंगे। रोहतास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में पहले सूरज ढलते ही सब कुछ बंद होता था, आज बिजली है, सड़कें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जब लोग बिना डरे रह सकते हैं।
वो दिन जब सरकार के संरक्षण में दिन दहाड़े डकैतियां होती थी, लोग नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सपूतों ने आतंकवाद से जमकर लोहा लिया है, पुलवामा, गलवान घाटी में शहादत दी है। बिहार के लोग किसी भी भ्रम में नहीं पड़ते। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बेमारू बनाने का है, उन्हें पास नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि विकास के मामलों में भी बड़ा काम हुआ है, लोगों की आय भी बढ़ी है। रोहतास की रैली में नीतीश कुमार बिहार की प्रगति के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार के लिए केंद्र की कई लाभकारी योजना है। मुंबई के एक मॉल में आग लगने से 2 दमकल कर्मी घायल, 3500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई के नागपड़ा स्थित सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार रात आग लग गई थी, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। इस आग में 2 दमकल कर्मी घायल हो गए हैं और पड़ोस की 55 मंजिला इमारत से 3500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मुंबई के फायर ब्रिगेड ने स्तर 5 की आग घोषित कर दिया है। आग पहले एक दुकान में लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आग गुरुवार रात 8:53 पर लगी और उस समय मॉल में 200 से लेकर 300 लोग मौजूद थे। इन लोगों को मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त बीमारी से जुड़ी सभी जानकारी देना जरूरी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो यहां आपकी जिम्मेदारी है तो आप बीमा कंपनी को अपनी बीमारी से जुड़ी सभी और सही जानकारी दें। ऐसा ना करने पर बीमा कंपनी की ओर से दावा खारिज किया जा सकता है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि बीमा का अनुबंध भरोसे पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति जीवन बीमा लेना चाहता है तो उसका यह दायित्व है कि वह सभी तथ्यों का खुलासा करे ताकि बीमा कंपनी सभी जोखिमों पर विचार कर सके। कोर्ट ने कहा कि बीमा को लेकर भरे जाने वाले फॉर्म में किसी पुरानी बीमारी के बारे में बताने का कॉलम होता है। इससे बीमा कंपनी उस व्यक्ति के बारे में वास्तविक जोखिम का अंदाजा लगाती है। किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब एवं हरियाणा में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों पर ब्रेक 4 नवंबर तक रद्द। पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण त्योहार विशेष ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स पर ब्रेक लग गया है। इन ट्रेनों को 4 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है। पंजाब में किसान रेल ट्रैक से तो हट गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल मालगाड़ियों को चलने देने की धमकी दी है। उन्होंने यात्री ट्रेनों को नहीं चलने देने का ऐलान किया है। इस कारण यात्री रेलवे ने ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। 4 नवंबर तक पंजाब अमृतसर के लिए ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। रेलवे की ओर से निरस्त ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। इससे त्योहारों के मौके पर पंजाब एवं हरियाणा से दूसरे राज्यों को जाने वाले रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सभी विदेशी नागरिकों, OCI, PIO कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति, टूरिस्ट वीजा पर नो एंट्री। सरकार ने 8 महीने बाद गुरुवार को चुनिंदा श्रेणियों को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा को बहाल करने का निर्णय लिया। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि वर्जित श्रेणियों को छोड़ भारत के विदेशी नागरिक, OCI और भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO कार्ड रखने वाले सभी व्यक्तियों समेत सभी विदेशी नागरिक कब किसी भी उद्देश्य से भारत की यात्रा कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। इस क्रमिक छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।